A very good afternoon to all the dignitaries, Honorable Chancellor Sir, Vice Chancellor Ma'am, Registrar Sir, Principal Sir, and respected guest speaker, Dr. Ashwini Kumar Bhargav Sir, all the delegates, faculty members, and students of Desh Bhagat University. I, Dr. Neha Thakur, Assistant Professor from Department of Kriya Sharir, here welcome you all for a webinar on Rash Shastra in collaboration with Vishya Ayurved Parishad on the occasion of 25th Silver Jubilee celebration of Desh Bhagat Ayurvedic College and Hospital. With this warm welcome, um, I would like to invite our today's guest speaker, Dr. Ashwini Kumar Bhargav sir. As we all know, today's webinar has organized with the collaboration of Vishwa Ayurved Parishad and sorry to disturb with the inconvenience. With this warm welcome, I request to invite Honorable Vice Chancellor Ma'am to give a brief introduction about today's webinar. Now, I am handing over our virtual platform to Honorable Vice Chancellor Ma'am. Please, Ma'am. Yeah, thank you so much, Jyoti. In fact, it is my pleasure to be amongst all of you today on the webinar on Rash Shastra, and my special welcome to Dr. Ashwini Bhargavji. And I'm very happy that this year Desh Bhagat College, they are celebrating their 25 years of existence, rather Silver Jubilee, and many programs have been undertaken by and organized by Desh Bhagat Ayurvedic College. Many seminars, many talks, many, you know, uh, technical sessions. And today's session is one of them. And I'm very happy for all the all the activities going on. So with these words, I congratulate each and every member who is here, my students, faculty members, organizers. Please go ahead with your talk. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much for your valuable presence and your words. So now, as I am carrying forward my session, as we all know, today's webinar has organized with the collaboration of Vishwa Ayurved Parishad, and today's guest speaker is also Secretary of Vishwa Ayurved Parishad, Dr. Ashwini Bhargav sir. With the brief introduction of Sir is working as a professor in Department of Rash Shastra and Bishajya Kalpana in Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar, and Sir is a former registrar of Guru Ravidas Ayurveda University, Hoshiarpur. Sir is an ex-director of the Dayanand Ayurvedic College Pharmacy, Jalandhar, and now currently Sir is serving as an National General Secretary in Vishwa Ayurved Parishad. With this brief introduction, I would like to invite and welcome you, sir. Now, I am handing over this virtual platform to respected Dr. Ashwini Bhargav, sir. Please, sir. You are getting my voice properly? Yes, sir. Hello, Yes, sir. Yes, sir. you It's are getting clear, my sir. voice? Yes, sir. It's clear, sir. Okay. Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Dr. Zora Singh ji, Chairman, Desh Bhagat University, Mandi Govindgarh, Dr. Shalini Gupta ma'am, Vice Chancellor, Desh Bhagat University, Dr. Kulbhushan, Registrar, Desh Bhagat University, and Dr. Satya Deoponde, Principal, Desh Bhagat Ayurvedic College, and Dr. Neha Thakur, who is the moderating this seminar today, and Dr. Amit Kapla, who is the head of the Department of Rice Shastra. आज
हम लोग रसशास्त्र विभाग की तरफ से कुछ बातें करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। रसशास्त्र विभाग, रसशास्त्र और भेषज कल्पना जो एक सब्जेक्ट है आयुर्वेदा में, वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं। बाकी किसी भी साइंस के अंदर या किसी भी मेडिकल साइंस के अंदर जो फार्मास्यूटिक्स होती है इंपॉर्टेंट तो होती है, लेकिन उसके अलावा उसमें अपनी मेडिसिन खुद नहीं बना सकता। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, जिसके द्वारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इस देश की गवर्नमेंट होता है, उसके अंदर शेड्यूल टी के अंतर्गत आयुर्वेद के फिजिशियन को ये छूट दी गई है, पेशेंट के लिए अपनी मेडिसिन खुद बना सकते। और उसकी प्रकृति के अनुसार ही उस मेडिसिन भी जो है वो डिसाइड की जाती है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति हर व्यक्ति की भिन्न है, और ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति कंसीव करता है उसी समय से उसकी प्रकृति जो है वो बन जाती है, जो वो माता के गर्भ में रहता है। उसके बाद हम जब व्यक्ति की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसलिए उसके लिए एक इंडिविजुअल मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। इंडिविजुअल मेडिसिन यानी हर व्यक्ति जो भी इस संसार में है उसके लिए उसका खान पान और उसका जो रहन सहन है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब हम आयुर्वेद में बात करते हैं तो उसके रहने के वातावरण के अनुसार भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसे क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए और क्या करना चाहिए। इसलिए रोल ऑफ साइड रूम फार्मेसी in the clinic or therapy center of Ayurveda is very important. जैसा कि हम सबको मालूम है कि कोई भी एक हॉस्पिटल है उसके अंदर क्लिनिक रहता है और थेरेपी सेंटर्स रहते हैं। हॉस्पिटल का हम सबको मालूम है कि हॉस्पिटल सिर्फ हॉस्पिटैलिटी के लिए होता है। जब पेशेंट को अपनी मेडिसिन लेने के लिए या डिजीज की मैनेजमेंट के लिए उस देखना पड़ता है, उसकी हॉस्पिटैलिटी इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए उसका हॉस्पिटल स्टे जो होता है उसको हम अगर अलग ढंग से देखें और उसके अंदर जो क्लिनिक्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिनिक्स, तो उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं और उसके अलावा जो थेरेपी सेंटर्स होते हैं, जब कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी है तो उसको सबसे पहले अपने फिजिशियन के पास जाना पड़ता है जो कि क्लिनिक के अंदर अवेलेबल है। और क्लिनिक के अंदर अवेलेबल फिजिशियन जो है उसको चेक करता है। चेक करने के बाद उसकी डिजीज के बारे में, उसकी पैथोलॉजी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और प्राप्त करने के बाद उसको किस थेरेपी की आवश्यकता है और किस प्रकार से उसके डिजीज की मैनेजमेंट होगी, इसका डिसीजन जो है एक क्लिनिक के अंदर जो बैठा हुआ फिजिशियन है वो ही करता है। और उसके अलावा
थेरेपी सेंटर्स, आयुर्वेद में थेरेपी सेंटर्स का जो महत्व है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पंचकर्म जो है इस प्रकार की थेरेपी है जो कि हर ट्रीटमेंट के साथ उसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि पंचकर्मा के अंदर शरीर के संशोधन की बात होती है। तो हम लोग आयुर्वेद के अंदर ऐसा मानते हैं कि संशोधन ही कम से कम आधा ट्रीटमेंट जो है वो माना जाए। और संशोधन भी इस प्रकार से हम ऋतु के अनुसार भी संशोधन व्यक्ति का करते हैं, और जब उसके अंदर वात पित्त कफ की वृद्धि हुई रहती है तो भी हम इसको शरीर के अंदर से निकालते हैं और उसका संशोधन करते हैं, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी पॉसिबल है। लेकिन जब वो डिजीज है तो भी इन थेरेपी सेंटर्स का अपना एक महत्व है, और इन थेरेपी सेंटर्स को भी चलाने के लिए साइड रूम फार्मेसी जो है बहुत ही आवश्यक है। साइड रूम फार्मेसी में हम मान लो किसी व्यक्ति को मसाज की जरूरत है तो उसके किस प्रकार के तेल की मसाज की जरूरत है, उसकी प्रकृति के अनुसार हमें वो तय करना पड़ेगा। और शायद जो बने हुए तेल रहते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनमें से हमें चूज करने पड़ते हैं, हम पेशेंट टू पेशेंट उसको डिफर नहीं कर पाते। उसके अलावा भी अगर हमें उसको स्नेहन करवाना है, स्नेहन करवाने के लिए उसको हमें पिलाना है, घृत पिलाने के लिए कौन से घृत की आवश्यकता है उसको, इसके बारे में भी जो आपका ये साइड रूम फार्मेसी है वो बहुत ही उपयोगी रहती है। अगर साइड रूम फार्मेसी के अंदर हम लोग चीजों को बनाकर उसका प्रयोग अपने पेशेंट्स के ऊपर करते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके अलावा भी जब हम आयुर्वेद के अंदर जाते हैं तो आयुर्वेद में जितनी भी मेडिसिन हैं, हम अगर रस योग सागर की बात करें तो उसके अंदर कम से कम हजारों ही मेडिसिन जो लिखी गई है, रस शास्त्र की लिखी गई है। उसमें अग्नि कुमार रस की बात करें तो 50 प्रकार का अग्नि कुमार रस है उसके अंदर। अगर हम मार्केट से लेंगे तो मार्केट में कोई ना कोई एक प्रकार का अग्नि कुमार रस अवेलेबल होगा। हम उसके अंदर से साइड रूम फार्मेसी के अंदर हम लोग जो हमें मार्केट में अवेलेबल मेडिसिन है उसमें क्या संशोधन करके हम अपने पेशेंट के लिए बना सकते हैं वो भी हम साइड रूम फार्मेसी के अंदर देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें कर्पूर रस की, कर्पूर और इसके अलावा कामदूत रस भी 3 प्रकार का कामदूत रस दिया गया है। यानी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स के डिफरेंस के कारण से, थोड़े थोड़े डिफरेंशिएशन के कारण से उसको अलग अलग प्रकृति के लोगों के लिए, अलग अलग डिजीजेस के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए जब हमारे पास कोई ऐसा विकल्प अवेलेबल होगा कि जिसके अंदर हम अपनी मेडिसिन को सही ढंग से बना सकेंगे और उसके अंदर संशोधन करके अपने पेशेंट तक उसको पहुंचा सकें। सबसे बड़ी बात जब हम आयुर्वेद की करते हैं तो यहां रिसर्च की आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि जितने भी योग अपने शास्त्रीय ग्रंथों के अंदर लिखे गए उनका उपयोग जिस प्रकार से लिखा गया है उसको अगर हम टेस्ट कर पाए कि जो उसके अंदर लिखा है उस हिसाब से वो अब पेशेंट्स के ऊपर इफेक्ट करता है या नहीं करता है, इस प्रकार के भी रिसर्च जो हम कर सकते हैं। लेकिन एविडेंस बेस्ड अगर मेडिसिन की बात करें तो शास्त्रोक्त मेडिसिन जितनी भी हैं, ऐसा अपना जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट भी इस बात को मानता है कि जितने भी ऐसे
शास्त्रोक्त ग्रंथ हैं उसके अंदर जो औषधियां लिखी गई हैं वो एविडेंस बेस्ड के अनुसार बिल्कुल ठीक है। और अगर हम उनमें से कुछ औषधियों का प्रयोग या उन औषधियों को बनाकर किसी को देते हैं तो उसकी बहुत बड़ी टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हम कोई नई मेडिसिन जो बनाते हैं तो उसके लिए हम सबको मालूम है कि किस प्रकार से उसके क्लिनिक उसकी टॉक्सिकल स्टडी है, सब चीजों के ऊपर जब क्लिनिकल स्टडीज लेके अगर हमें अपनी पेटेंट मेडिसिन बनाने के अंदर मेडिसिन होती हैं या तो कुछ ऐसी मेडिसिन जिनको हम अलग से उनका प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद हम विभिन्न डिजीजेस के ऊपर उनका इफेक्ट देखते हैं, और दूसरी तरफ ऐसी पेटेंट मेडिसिन जो शास्त्रोक्त लिखे हुए योगों को मिलाकर या उसमें बताए गए द्रव्यों को मिलाकर बनाई जाती है। ऐसे द्रव्य जिनकी जो कार्मुकता है वो रिपोर्टेड है ऑलरेडी इन दीज बुक्स, उनको जब हम मिलाकर बनाते हैं और उसके जो खास करके इंडिकेशंस हैं उनको ही अपनी मेडिसिन के इंडिकेशन बनाते हैं, उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस नहीं होते। इसलिए आयुर्वेद का जो फिजिशियन है उसको अपनी मेडिसिन बनाने के लिए परमिट किया गया है और अपनी जो साइड फार्मेसी है उसको हमें कोई मेडिसिन हम बना सकते हैं, इसके लिए भी हमें रियलाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं, इसको करते हैं तो और जितने भी कानून इसके ऊपर होते हैं, जैसे अगर ऑपियम का प्रयोग करते हैं तो ऑपियम का प्रयोग उस मेडिसिन के अंदर लिखा गया है तो हमारे ऊपर तो सब कानून लागू होंगे, तो ऑपियम को रखने के लिए हमें जिनके ऊपर चलना पड़ता है। अपनी मेडिसिन के अंदर हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमें कोई इस प्रकार की छूट नहीं है कि हम कुछ ऐसे जो प्रोविजंस हैं जिनके कारण से पनिशमेंट हो सकती है उनको हम अगर करते हैं तो वहां भी हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए साइड रूम फार्मेसी के अंदर हमें बहुत तामझाम की जरूरत भी नहीं है। एक छोटी सी फार्मेसी जो अपने क्लिनिक है उसके अंदर चाहिए क्या, एक छोटा सा फर्मेंटेशन चाहिए। घर में नॉर्मली एक गैस ही हमारे पास अवेलेबल रहती है, छोटी सी गैस रखी जा सकती है। उसके अलावा हमें कुछ खरलों की जरूरत होगी और खरल एक आध पत्थर का खरल हम रख सकते हैं, बाकी कुछ पोर्सिलेन के खरल रख सकते हैं। पत्थर का खरल इसलिए रखना है कि अगर हम कुछ ऐसी आदत से जुड़ी हुई मेडिसिन जो है वो आते हैं तो उसे पत्थर के खरल में हम रिएक्शन है बहुत ही कम रहता है, इसलिए हम वहां पे पत्थर का इसके अलावा आप कर सकते हैं एक छोटा सा कोई रख सकते हैं, चाहे आप अगर मैकेनाइज नहीं है तो मैनुअल की जूसर हमारे पास अवेलेबल हो सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम अपनी साइड रूम फार्मेसी में रखते हुए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात, जब कोई भी फार्मेसी हम किसी भी फार्मेसी की जब हम बात करते हैं तो उसमें इन चीजों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है, चाहे वो कमर्शियल फार्मेसी हो चाहे हम अपनी फार्मेसी
जिसको हम साइट रूम फार्मेसी कहते हैं, उसको भी हम अगर रखते हैं तो उसके अंदर भी उन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी हम उस रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उन रॉ मटेरियल्स को रखने के लिए प्रॉपर सुविधा हो, कुछ कंटेनर्स ऐसे हों और उन कंटेनर्स के अंदर भी प्रॉपरली लेबल्ड हो, जिसमें उसका नाम हो कम से कम, उसके बाद उसका लैटिन नेम हो उस द्रव्य का, और उसके अलावा उसके अंदर उसका डेट ऑफ परचेज जो है हमें चाहिए, डेट ऑफ परचेज भी हमें उसका चाहिए। तो इसलिए ये सब उसके ऊपर लेबल के ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए। और उसकी आइडेंटिफिकेशन अगर हम जहां से मंगवाते हैं, अगर प्रॉपर सोर्स है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमें हमारे पास कोई ना कोई ऐसे पैरामीटर्स चाहिए, या तो हम उसको मेंटेन करके रखें कि हमें किस पैरामीटर्स की चीज चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा कोई ऐसा हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं उसका, या हमारे पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट में फार्मेकोपिया इज देयर, आयुर्वेदिक फार्मेकोपिया ऑलरेडी हमारे पास है, तो उस फार्मेकोपिया के अनुसार हम अपनी मेडिसिन जो भी हमारे पास रखी हुई हैं उनको हम उन स्टैंडर्ड के ऊपर कम से कम वो मेडिसिन हो जो रॉ मटेरियल्स उसके ऊपर। दूसरा, वहां अगर कोई पॉइजन्स रखे हुए हैं तो पॉइजन्स को भी आप कम से कम उसको रेड लेबल करके रखिए, ताकि पॉइजन्स जो है वो दूर से ही हमें दिख जाए, कोई व्यक्ति उसको उस प्रकार से प्रयोग न कर पाए। इसी प्रकार से जब हम कोई मेडिसिन, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. somebody is speaking, I think so. Uh, yes, sir. But by doing this activity, we intend to take the performance, the type of Hello? work we are doing here. Can I continue? Or our students. Hello? Yes, sir. You can continue, sir. Within 2 minutes, sir, it will be muted. एक सेकंड। By having this club, we will be enhancing our presence in the media in society, the electronic, the print media, or social media. So it's a great type of opportunity, and the initiative taken by Dr. Rajbhaji and Amandeep, I really commend that they have taken this initiative. Otherwise, as a media, not as the coverage of the news items of Hello? but Hello? the performance of Yes, sir. Sir, 2 media minutes, sir. जी नेहा मैम, within the camera. Sir, 2 minutes, sir. Just we are calling. The element part of it, or the projects, or the social media, YouTube channel, any web media, all such activities are again quite subdued. We tried about 2 years back. We put some effort in that, and at the time, I will say that the effort was not very perseverance. It was not full of perseverance. It was lacking some energy. We tried to put it. I'm so sorry for the disturbance, sir. Only for 1 minute. Please wait for 1 minute, sir. Continue with the effort. I won't say that my team was lacking. I will say that the management was lacking. We didn't have a very strong team as well. can I start now? We have a strong team as well. And now I think Sir, sorry for disturbance, sir. Only Hello? 1 You minute, getting my sir. voice? Yes, sir. I'm getting your voice, sir. Sir, please, sorry for disturbance, sir. Please wait for 1 minute, sir. Please. coverage of Hello? Hello. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Getting my voice? Yes, sir. I'm getting your voice, sir. But it is mixing up with the another voice, sir. That's why, sir, I'm telling. Sir, please wait for 1 minute, sir. There are huge gaps. How we can harmonize the activities of India? How we can harmonize the activities of every department through media? So that the coverage as well is better and best done. And same is the case of the activities as academic and social media, development of media projects also.
All the best. Thank you, Honorable Chancellor sir. मैं इस मीटिंग में ऑनरेबल प्रो चांसलर के मैम के पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो हमारा जो ये मीडिया क्लब है ये ऑनरेबल चांसलर सर के आशीर्वाद से बना है और चांसलर सर ने Sorry for the disturbance, sir. Please continue with your session, sir. Sorry for the disturbance, sir. हाँ मैडम, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you so much. Please continue, sir. You are getting my voice? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. We are getting your voice, sir. Please continue, sir. ओके। जब हमारी जो साइड्रूम फार्मेसी है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि किन चीजों की आवश्यकता मोस्ट प्रोबेबली रहती है, और उसके अलावा एक अगर हम जैसा अर्क यंत्र, आजकल अर्क यंत्र आराम से मिल जाते हैं, रिटॉर्ट में हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे जब हम अर्क भी है बाजार से उतने अच्छे नहीं मिल पाते, तो हम अपनी जरूरत के अनुसार ऐसी अर्क भी बना सकते हैं घर पे। और उसके अलावा अर्क यंत्र के अलावा भी कुछ भी हम ऐसे जो भी छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर हैं या कुछ ऐसा जिसमें कि हम भावना दे पाए, या सिंपली अगर हम खरल में दे सकते हैं तो खरल भी आवश्यक रहेगा। क्योंकि जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि अगर हम कोई भी एक मेडिसिन की बात करते हैं, अगर आप रसरंगनी उठाएंगे तो रसरंगनी के अंदर भी अगर अदरक बसम की बात करेंगे तो उसके अंदर विभिन्न अनुपानों के साथ, विभिन्न अलग अलग द्रव्यों के साथ मिलाकर जब हम इन चीजों को उपयोग करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक ही अदरक भस्म अलग अलग अनुपानों से, अलग अलग कह सकते हैं कि भावना देने से और अलग अलग चीजों के साथ मिलाकर अलग अलग रोगों के ऊपर इफेक्ट करती है। तो उस ऐसी दशा में हम लोग क्या करें, उस समय भी हमें साइड्रूम फार्मेसी की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो हमें लगता है कि नहीं, इंडियन पेशेंट को तो इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं कहाँ से लाऊं, ये मेडिसिन कहाँ मुझे मिल पाएगी। हो सकता है कई बार हमें अब तो खैर बहुत स्टैंडर्डाइजेशन की बातें होने लगी हैं जब हम फार्मेसी से मेडिसिन लेते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग शॉर्टकट्स की बात करते हैं। जैसे मान लो सिंपल त्रिभुवन कीर्ति रस है, हम सबको मालूम है कि 3 पानी दी जाती है, सब रस है, कुछ रस है, धतूरा सब रस है। तो ऐसे मतलब इन सब रस दी गई है कि नहीं दी गई है ये हमें मालूम नहीं होता। तो अर्ड है उसको अपने क्लिनिक में ही हम अगर कुछ भावना दिलवा के रख लें, हो सकता है उस प्रक्रिया को पूरा ना कर पाए हम क्लिनिक पे, लेकिन कम से कम भावना द्रव्य अगर हम सही ढंग से दे पाएंगे तो भी उसके इफेक्ट्स जो है हमें और ज्यादा अच्छे मिल पाएंगे। तो कोई भी आयुर्वेदिक फिजिशियन जो है वो साइड्रूम फार्मेसी के बिना जो है वो सक्सेसफुल होना उसके लिए इतना नहीं रहता है, क्योंकि जब हम मार्केट से पेटेंट प्रोडक्ट्स लेते हैं तो पेटेंट प्रोडक्ट्स अपने अपने तरीके से काम करते हैं। जैसे इसमें एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, जैसे आयुर्वेदा फार्मूलरी ऑफ इंडिया है, उसके अंदर कुछ योगों के नाम दिए गए। तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही नाम से शास्त्र में विभिन्न योग हैं, 50, किसी के 25, किसी के 10, किसी के कितने। तो कम से कम आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी ने यह तय किया है अब उसमें से सबसे उपयोगी जो हमें लगेगा हम उसको उसके अंदर रखें। तो लेकिन बाकी जो हमारे पास 5, 10 या जितने भी और बचे उनका क्या करें, तो उनके लिए हम कहाँ जाएंगे। तो जो खास करके फार्मेसीज भी जब बनाती हैं तो उनको आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी को ही कई बार बेसिस रख के बनाती है, और सरकार भी चाहती है कि इसी के बेसिस के ऊपर आप बनाएं। लेकिन फिर भी कुछ फार्मेसीज अलग अलग भी मेडिसिन बनाती हैं। लेकिन एक वैद्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको अपने रोगी के अनुसार अपनी औषधि का चयन करना है। जब रोगी के अनुसार चयन करना है
तो हमें उसके लिए किस अनुपान की आवश्यकता है। मान लो अनुपान की भी हम बात करते हैं कि इस क्वाथ के साथ इसको अनुपान करवाना चाहिए, इस सवरस के साथ इसको देना चाहिए। तो जब ऐसी बात आती है तो आपकी फार्मेसी जो साइड फार्मेसी है, और दूसरी बात एक और खास बात जो आप लोगों के ध्यान में होगा, जब NABH की भी जब बात आती है तो वहां भी कैटेगराइज किए गए हैं क्लिनिक्स को भी। सबसे पहले उन्होंने एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट उसको कैटेगराइज किया है, डे केयर सेंटर कैटेगराइज किया है, थेरेपी सेंटर किया है, हॉस्पिटल किया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो डे केयर सेंटर है, मान लो एक मेरा क्लिनिक है छोटा सा, उसके अंदर में डे केयर सेंटर तो बना ही सकता हूँ ना। तो मेरे पास पेशेंट सुबह आता है, और सुबह आता है तो मैं उसको एक दिन के लिए रखता हूँ अपने पास। तो अगर मैं उसको उस अनुपान के साथ मेडिसिन वहां भी दूंगा अपने क्लिनिक पे, उसको सवरस की जरूरत है तो मैं सवरस निकाल के उसके सामने निकाला सवरस, मैं उस सवरस के साथ जब उसको खाने के लिए देता हूँ, मान लो अदरक का सवरस चाहिए और उसके स्वाद मैंने उसमें शहद मिलाया, शहद मिला के मैंने उसको दिया, उसको भी लगेगा सचमुच ही किया जा सकता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को हम बोल देते हैं कि आप इस अनुपान के साथ ले लेना, लेकिन वो उस अनुपान को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, वी डोंट नो। तो लेकिन हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी जरूर रहनी चाहिए कि हम लोग अपने पेशेंट के लिए हर चीज वहां पे बनाकर दिखा पाए अगर उसको आवश्यकता है तो ऐसे ही एक और बड़ी बात जो खास करके थेरेपी सेंटर्स में, क्लिनिक्स में, और वो भी फार्मेसी के अंदर ही पॉसिबल होगा, क्योंकि हम सबको मालूम है कि रसशास्त्र और भेषज कल्पना ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं। तो भेषज कल्पना की जब हम बात करते हैं तो भेषज कल्पना अपने आप में क्या है कि कोई भी प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, चाहे वो मिनरल बेस्ड मेडिसिन है। लेकिन अगर हम सिर्फ प्लांट बेस्ड मेडिसिन की बात करें तो क्या हम पत्तों को सीधे खा सकते हैं क्या? छाल को खा सकते हैं क्या? जड़ को खा सकते हैं क्या? ऐसे निगल तो सकते नहीं है, उसका कोई ना कोई रूप हमें बनाना पड़ेगा। चाहे तो उसका रस निकाल के पिए, चाहे हम उसका पल्प बना के, पेस्ट बना के खाएं। पेस्ट भी जब खाना हम कुछ चीज खाते भी हैं तो दांतों के बीच जब चबाते हैं तो भी हम पेस्ट बना के ही तो चबाते हैं। तो उसका पेस्ट बन के हमारे अंदर जाता है, तभी उसके अंदर के जो कार्बनिक द्रव्य है वो उसके अंदर से निकल पाते हैं। उसके अलावा हम किसी चीज का अगर सूखी हुई है तो उसका क्वाथ बना के देते हैं, कि कई चीजों का हम फांट बना के देते हैं, कई चीजों का हम हिम बना के देते हैं। तो इस प्रकार से ये पांचों कल्पनाएं जो रहती है वो सभी चीजों का बेसिस है। यानी कोई भी प्लांट बेस्ड मेडिसिन की जब हम बात करते हैं तो उसको इन 5 कल्पनाओं में से गुजारना पड़ेगा, तब उसके एक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो काम करेंगे। तो उन एक्टिव प्रिंसिपल्स को इन कल्पनाओं के द्वारा निकाल कर उसको अपनी मेडिसिन के साथ जोड़ना, ये काम भेषज कल्पना का है। उसको विभिन्न कल्पनाएं हम कर सकते हैं उसके लिए। तो जैसे हम कोई भी एक क्वाथ बना लिया, उसको गाढ़ा करते चले गए तो क्या बना हमारे पास, उसकी घन क्रिया हो गई हमारे पास, उसके ले क्रिया हो गई, अवलय बन सकता है। उसको गाढ़ा करते जाएंगे तो उसका जो कॉन्सेंट्रेटिव एक्सट्रैक्ट हमारे पास आएगा, उसकी इफेक्ट जो है वो जो फुल मेडिसिन जो जितना भी हम, मान लो हमने 1 किलो चीज का किसी का क्वाथ बनाया, और क्वाथ बनाने के बाद उसको हमने 1/8 रखा, उसके बाद उसको छान लिया, छानने के बाद उसको हमने गाढ़ा करके उसका एक्सट्रैक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट बना लिया। तो उस इस प्रकार से भेषज कल्पना की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ इन चीजों को बनाना नहीं, बल्कि इनके द्वारा हम डाइटिक्स की भी बात करते हैं। डाइटिक्स में हमें पता ही है, जैसे मंडपेय विलेपी है, उसके अलावा हम यूष कल्पनाएं करते हैं, मांस कल्पनाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार की जितनी भी आपके किचन में आप जो भी बनाते हैं, सो वो सब भेषज कल्पना के अंदर आ जाता है। उसके अंदर कौन से मसाले डालने हैं, क्या होना है, ये सब कुछ जो है वो भी इसी फार्मेसी जो मैं फार्मेसी की जिसकी बात कर रहा हूँ, अपनी साइड फार्मेसी की बात करता हूँ, किसी भी क्लिनिक के अंदर जो है वहां इसका भी प्रोविजन हमारे पास रहना चाहिए। मैंने अपने पेशेंट को बोल दिया तुम ऐसे खाना, ये चीजें तुमने खानी है। अगर हम वहां, हमारे पास ऐसी प्रोविजन होगी कि आज तुम यहाँ रह रहे हो, आज हम तुम्हें यहाँ खिलाएंगे और उसके बाद तुम इसको ऐसे बना के खाना, तो शायद वो उसको और अच्छे ढंग से फॉलो कर पाएगा और हमें रिजल्ट्स भी जो है वो अच्छे ढंग से मिल पाएंगे। तो ये सब चीजें अगर हम इनको अपने ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि भेषज कल्पना का पूरा पार्ट, उसके अलावा आगे आप ये भी बात करते हैं तो बहुत सारी हम लोग कह सकते हैं बस्ती कल्पनाएं रहती हैं, बस्तियां बनाते हैं, कौन कौन सी बस्ती देनी है, इस प्रकार की बस्ती देनी है।
तो वो भी उसका भी काम आपकी इस फार्मेसी में हो पाएगा सही ढंग से। बनी बनाइया ना तो बस्ती मिलती है बाजार में, और वो जो मिलती भी है उनका कितना इफेक्ट होता है हम अपने हिसाब से वहां पे उसको कर सकते हैं। इसलिए ये जो साइड फार्मेसी है उसको उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हमें देना चाहिए। हम शायद वहां उस ढंग से, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेजेस के भी हॉस्पिटल्स होंगे, उसके अंदर बनाए हुए हमने थेरेपी सेंटर भी बनाए हुए हैं, उसके अंदर हमने किचन भी बनाई हुई हैं, उसके अंदर हमने फार्मेसीज भी बनाई हुई है, साथ में हमारी टीचिंग फार्मेसीज हैं जहां हम ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन एक जो भी, लेकिन उसको रनिंग फॉर्म में होना चाहिए। यानी वहां पे हमारे हॉस्पिटल में अगर हम मेडिकल कॉलेज या आयुर्वेदिक कॉलेज के हॉस्पिटल में पेशेंट आया, हमने उसको, हम कहते हैं पेशेंट आते नहीं है, टिकते नहीं है। अगर हम डे केयर सेंटर की बात करें, तो अगर हम जेरियाट्रिक्स की बात करें, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जेरियाट्रिक सेंटर हमारे बुजुर्ग यहाँ आए, सुबह छोड़ जाएं, शाम को ले जाएंगे, बात नहीं। और हम दिन भर उनका ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने में क्या करना है उनका? ध्यान रखने में यही तो करना है, उसको हमने चेक करना है, उसके लिए किसी चीज की जरूरत है वो बना के देना, उसकी डायटिक्स का भी ध्यान रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं कभी खाली होंगे, इनके बेड्स हमेशा भरे हुए रहेंगे। हो सकता है डिजीज के कारण से ना रहे हो, लेकिन हेल्दी पर्सन को भी हम एडमिट कर सकते हैं। हेल्दी पर्सन को यहाँ हमारे पास आयुर्वेद में यही तो खास बात है, इसके अंदर हम सिर्फ डिजीज पर्सन को नहीं रखते हैं, इसमें हम हॉस्पिटैलिटी के लिए हम लोग अपने जो हेल्दी पर्सन है उनको भी रखते हैं, ताकि उसका खाना पीना रहना सहना ठीक हो जाए। आज जब कोरोना का टाइम इस समय आया हुआ है, तो इस समय क्यों नहीं हम आइसोलेशन सेंटर्स जितने हैं वो हम अपने आयुर्वेदिक कॉलेजेस को क्यों नहीं आइसोलेशन सेंटर्स बना सकते? मान लो किसी को लगता है कि लेकिन उसको अभी पॉजिटिव तो नहीं है, हमें जरूरत है उसको आइसोलेट करने की, तो क्यों नहीं अपने कॉलेज को आइसोलेट हो सकता है? ठीक है, जब उसका पॉजिटिव आ जाएगा और वो थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाएगा, मुझे लगता है देश भगत यूनिवर्सिटी ने तो उसको किया था, आइसोलेशन सेंटर्स ऐसे बनाए हैं। तो उन आइसोलेशन सेंटर्स के अंदर भी ये जो आपकी जो फार्मेसी है, या जिसको हम साइड फार्मेसी कह रहे हैं, इसका बहुत जबरदस्त उपयोग हो सकता है। इसके अलावा भी जो डॉक्टर्स हैं अपने लिए छोटी छोटी मेडिसिन आराम से बना सकते हैं। मान लो किसी को टंकण भस्म की जरूरत, टंकण भस्म कहाँ मिले? आपने घर में टंकण भस्म आराम से, टंकण करना क्या है, सिंपली टंकण को सिंपल तवे के ऊपर जब हम रखते हैं उसको पीस लेते हैं, जब वो फूल जाता है तो टंकण भस्म बन जाती है। उसमें करना क्या है? ऐसे छोटे छोटे काम अपनी साइड फार्मेसी के अंदर हो सकते हैं। अगर हम कुछ छोटी मोटी भस्में भी बनाना चाहें तो भी, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी आयुर्वेद, कई बार हम लोग सोचते हैं जब रस शास्त्र की बात करते हैं तो आप तो भैया ये कहते हो कि हम इसमें पाथियां यूज कर रहे हो, धुआं होता है, ये होता है, वो होता है, पता नहीं कितनी बातें वो करते हैं। आपके जो कंटेनर्स हैं वो आप कौन से सदी की बात करते हो, आपने हांडियां रखी हुई हैं, ये सब रखा हुआ है। लेकिन आयुर्वेद इज वेरी सिंपल। आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप अपनी मेडिसिन आराम से बना सकते। वही हम सबसे इक्विपमेंट्स की जब हम बात करते हैं, इक्विपमेंट्स क्या है, हमें किसी लेबोरेटरी के लिए कहीं कोई कांच के बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिंपली हमारा जो बैठा हुआ कुम्हार है गांव के अंदर, जैसा भी हम कंटेनर में वो बना के दे सकते। तो इसलिए कहा हम बिल्कुल रूरल बेस्ड, एक आदमी मान लो कहीं उसको जाना पड़ गया बहुत हिली एरिया में, फॉर फ्लंज एरिया में उसकी पोस्टिंग हो गई, तो वहां भी वो अपनी मेडिसिन आराम से बना सकता है। उसको भस्म बनानी है तो क्या करना क्या है, एक गड्ढा खोदना है जमीन के अंदर, और उसके अंदर गज फुट, एक गज लंबा, एक गज चौड़ा गड्ढा खोदा, और पाथियां आराम से मिल जाती है। कहीं से भी पशु तो हर जगह रहती है ना, तो वो नीचे 2/3 नीचे डालनी है, उसके बाद अपना मान लो शंख की भस्म हमने बीच में शंख रख दिया, उसके ऊपर बाकी चीजें रख दी, और शंख भस्म कितना काम करती है हम सबको मालूम है। और राटिका भस्म क्या है, कौड़ियां कहाँ नहीं मिलती, शंख कहाँ नहीं मिलता, हर जगह अवेलेबल है। ये मंदिर के अंदर भी शंख मिल जाएगा आपको, पुराना शंख में मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमें कैसा भी शंख चाहिए। अब उसकी भस्म कहीं भी बैठ के बना सकते हैं आपसे। और एक खास बात जो देखने वाली है कि हम लोग कहते हैं ना कभी हमें फर्नेंसिस में काम करना चाहिए, ये है वो, बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं। ठीक है, फर्नेंसिस में करना चाहिए अगर अवेलेबिलिटी है हमारे पास, लेकिन उस फर्नेंस के अंदर भी अगर आपको 1000 डिग्री या 1500 डिग्री टेम्परेचर कहीं करना पड़ जाए तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। इजी नहीं है वहां पे, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है।
लेकिन एक गड्ढा खोदने के बाद जब हम उसके अंदर पाथियां नीचे लगाते हैं, बीच में रख ऊपर, उसको ऊपर से सब अगली दे देते हैं, उसकी मॉनिटरिंग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप कहीं पे एक फर्नेस रखेंगे, कितना टेम्परेचर हो रहा है, घट रहा है, पट रहा है, लाइट चली गई है, ये हो गया, वो हो गया, तो क्या करें। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, बसा बनाने के लिए ऊपर से उसको अग्नि दी और आराम से पाथियों में अग्नि अपने आप चलती है, रात को लगा देते हैं, सुबह निकालते हैं, आराम से जाके सोते हैं आराम से। और सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो हमारा काम हो चुका होता है। और वो पाथियां जो हैं हमें कम से कम भी 900 से लेके 1000 डिग्री तक का टेम्परेचर दे देती हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जितनी बड़ी पुट है उसके अनुसार से वो टाइम पीरियड जो है बढ़ जाता है। जब पीक क्रिएट होती है तो वो पीक जो है 900 से लेके 1100 के बीच में वो लगभग टेम्परेचर दे देती है। और वो उसी हिसाब से हम लोग फर्नेस को भी बनाने में हमने उसी को आधार मान के फर्नेसेस भी बनाए हैं कि हमें किस प्रकार से उसको इंक्रीज करना, कहाँ पे उसको हमने उस कितनी देर तक रखना, उसके बाद कैसे कैसे स्वांक्षित होने पर उसको निकालना। तो ये बातें जो है वो आराम से हम लोग अपनी साइड रूम फार्मेसी में कर सकते हैं। कहीं भी है, क्या जरूरत है, कहीं पे हमारे पास नहीं, दवाई नहीं है, दवाई का रोना तो हम हो ही नहीं सकते कभी भी। कई बार कहते हैं डिस्पेंसरी में हूँ जी मैं, वहां सरकार दवाइयां नहीं देती। भैया सरकार तो दवाइयां नहीं देती, तुम थोड़ा सा प्रयास करो तो तुम्हारी उसी डिस्पेंसरी के अंदर तुम छोटी मोटी चीजें जो तुम्हारे लिए इतनी उपयोगी हैं, मान लो शंख और विराट भस्म आपने बना के अपने पास रख ली, जितना मर्जी कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जिसका पेट दर्द हो रहा है, तुरंत उसके 3 पुड़ियों में आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो ऐसी चीजें हम आराम से अपने वहां बना सकते हैं। तो उसके अलावा आप कोई घृत कल्पनाओं की जरूरत पड़ती है तो बड़ा इजी है, कोई मुश्किल काम तो है नहीं जिसको हमने करना है। और मसाज के लिए ऑयल चाहिए, उसकी मूर्छना करके अगर हम प्रयोग करते हैं तो ऑयल। दूसरा एक बात और भी, यहाँ जब हम बात करते हैं ऑयल्स की बात करते हैं, ये घृत की बात करते हैं, तो उसमें भी हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर पीने के लिए घृत चाहिए तो वो मृदु पाक होना चाहिए, अगर मसाज के लिए चाहिए तो वो खरपाक होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। लेकिन जब मार्केट से लेने जाते हैं तो मसाज के लिए लेके तो खरपाक हुआ मिलता है क्या, हमें नहीं मालूम होता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें वो जो छोटे छोटे ऐसे बारीकियां हैं एक मेडिसिन के अंदर जो कि उसका इफेक्ट को बढ़ाती है, वो बारीकियां जो है वो हम अपनी साइड रूम फार्मेसी में आराम से कर सकते हैं। इसलिए साइड रूम फार्मेसी का जो प्रोविजन होना चाहिए हर क्लिनिक के साथ, हर थेरेपी सेंटर के साथ, हर जो कह सकते हैं हॉस्पिटल के साथ, और वो वर्किंग कंडीशन में, और वर्किंग कंडीशन में होगा तो देखिए आनंद जो आएगा वो अलग सा ही आनंद होगा, और उससे रिजल्ट्स हमें फटाफट मिलने शुरू होंगे, और हम सब नेचुरली कि आयुर्वेद का भी उससे नाम बढ़ेगा। तो इतना ही मैं आज के लिए जो मैं आपसे बात चर्चा की है उसमें, तो अगर हम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट को आप देख लेंगे तो उसमें ये सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा एक फार्मेसी अगर हमने डेवलप करनी है तो उसके लिए हमारे पास जीएमपी रूल्स हैं लिखे हुए, हम न्यूनाधिक रूप से उसके अंदर मशीनरी भी अवेलेबल है, छोटी मोटी मशीनरी भी नहीं, हमने बहुत बड़ा उसमें से मशीनरी हम चूज कर सकते हैं हमने इस फार्मेसी के लिए। उसके अलावा जो भी मतलब इसमें मैंने जो आपके सामने की बातें रखी हैं, पीछे का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। कई बार हम लोग एग्जाम लेने जाते हैं कई जगह, वहां स्टूडेंट्स जब सेकंड क्रॉप में रहते हैं तो उनको इतना उसके ऊपर फोकस्ड नहीं रहते हैं कि मेरा शास्त्र की क्या जरूरत है या उसके लिए मुझे मतलब स्पेसिफिकली द्रव्य की जरूरत क्या, तो बाद में पता चलता है कि शास्त्र की कितनी आवश्यकता आयुर्वेद के अंदर है अगर आपने आयुर्वेद के फिजिशियन बनना है तो ऐसी स्थिति के लिए आज हमारा ये जो विषय था मैंने उसी को आपके सामने रखा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो विषय हमारे सामने है वो है साइड रूम फार्मेसी। उस साइड रूम फार्मेसी के लिए हम रसशास्त्र और वैशज्य कल्पना का जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे ढंग से पढ़ें, और पढ़ने के बाद और अपने अपने क्लिनिक्स के ऊपर आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम वैशज्य कल्पना और रसशास्त्र को ध्यान से सेकंड क्रॉप में पढ़ के जाएंगे तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, चाहे वो स्वस्थ वृत्त की बात आए, अभी जो हमने देखा कोरोना पीरियड के अंदर तो क्या क्या बोला उन्होंने कि भाई आप एक काढ़ा पियो। अब काढ़ा बनाना कई बार
अब किसको पता है काढ़ा कैसे कैसे होता है, उसमें कौन से मृदु द्रव्यों के लिए कितना जल डालना, उसके अलावा कठिन द्रव्यों के लिए कितना जल डालना, उसके अलावा उसके अंदर उन्होंने कहा कि नाक के अंदर 2-2 बूंद डालिए, अणु तेल की आवश्यकता पड़ती है नाक के अंदर डालने के लिए। तो ऐसे मतलब जो भी चीजें हैं वो हम लोग अगर अपने आप बनाएंगे तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे और हमें आनंद भी आएगा अपनी प्रैक्टिस में। इतना ही आज मैं आपके सामने रखते हुए मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ देश भगत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मैम और डॉक्टर पिची आज मुझे यहाँ बुलाया और मैंने अपने मन की बात यहाँ पे रखी। मोदी जी सिर्फ मन की बात नहीं करते हैं, मैंने भी अपने मन की बात रखी है और इस मन की बात से मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हम दिमाग में कम से कम आंदोलन जरूर होगा कि हम जो टीचर्स हैं वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर प्रक्रिया उनके हाथ से एक बार निकल जाए। जैसे हर प्रक्रिया एक बार निकलती है, हम जब रसशास्त्र की भी बात करते हैं ना तो उसमें बड़ा ही सिंपल, अगर आप कहेंगे कि आप भारत के साथ कैसे काम करें तो बड़ा सिंपल है। आप हिंगुल से भारत का निष्कासन करें और उस भारत का सामान्य शोधन करें, उसके बाद गंधक मिलाकर उसकी कजली बना लें। आप कजली जब बन गई तो आप जितनी मर्जी रस औषधियां आप अपने घर पे ही बना लो आराम से। खरलिया रसायन तो हम बना ही सकते हैं, अगर कॉपी पकड़ में थोड़ी दिक्कत आती है, परपटी हम आराम से घर पे बना सकते हैं और उसके रिजल्ट्स भी हमें आराम से मिलते हैं। तो इसलिए मैं सभी से यही मेरा निवेदन है, टीचर से भी और स्टूडेंट से भी, कि आप इसके ऊपर थोड़ा फोकस्ड होइए। उस आपके फोकस के कारण से क्या होगा कि आने वाले समय में आयुर्वेद का जो सिनेरियो है वो बदलेगा और पूरा देश पूरा समाज हमारी तरफ देख रहा है। बिना वृक्ष शास्त्र के, बिना भेषज कल्पना के आयुर्वेद में चलना संभव नहीं है। तो इसलिए इस पे मैक्सिमम फोकस आपका रहेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे। इतना ही कहते हुए मैं आज के लिए अपना वक्तव्य यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for sharing this knowledgeable session and valuable experiences. We hope in future also we will be blessed with your presence in our webinar. So lastly, I would like to invite our respected principal, Dr. Satya Depande, sir, for the vote of thanks. Please, sir. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. We can hear your voice. I am highly thankful to Honorable Chancellor Sir, respected VC Ma'am, who enlightened us in their busy schedule. I am extremely thankful to our guest speaker, Professor Dr. Ashwini Bhargav, General Secretary of Vishwa Ayurveda Parishad. He spared his valuable time for us in his busy schedule. He is in a practical exam, doing his duty in Amritsar. So he has delivered a lecture. He delivered very valuable lecture regarding side room pharmacy in hospital. It will guide us to establish a practical side room pharmacy either in big hospital, college hospital, as well as personal clinic. I am thankful to Dr. Neha Thakur. She moderated this webinar in well manner. I am also thankful to Dr. Amit Kapila, Assistant Professor Rasashastra, who took initiative for this seminar. I am thankful to Dr. Jyoti Dhami and IT team for their kind support. Without their support, it was not possible. Lastly, I am thankful to all participants, either my teachers and students. Finally, after Man Ki Baat of Dr. Ashwini Bhargav, I have to say, हम होंगे कामयाब एक दिन. Thank you so much. Thank you so much, sir. Let us fight and we'll surely कामयाब. Thank you. Thank you, sir. Thank you, to sir. all. Thank you, one and all. Thank you all. Stay Thank you safe. so much. Thank you, sir. Stay safe, stay healthy.